Hello and welcome to Beautiful Mind IS. I am Arun Kumar. I am going to discuss the topic of essay that has been asked in last Saturday. The topic is gender difference doesn't mean gender deficiency. जेंडर के बीच में जो डिफरेंस होता है उसका मतलब डिफिशियंसी नहीं है, ये आपको डिस्कस करना ऐसे के फॉर्म में. Before I discuss all these things, let me remind you that many of you have written in a one direction. You have started making a point and arguing that there are not difference between men and women. But fact is that men and women differ in a significant way. मेन और women के बीच में भेद होते और उसको हम कहते हैं सेक्स डिफरेंस. Nobody can deny that in many ways, in terms of hormones, in terms of morphology, body morphology, there are significant differences. If you analyze emotionality, you will find significant differences. Physical strength, you will find significant differences. So it is not to say that कोई डिफरेंस नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं, डिफरेंस होता है. तो पॉइंट में आपको निगेशन से स्टार्ट जो किया है उसको हम आपको करेक्ट करना चाहते हैं कि सबसे पहले यू शुड पुट द पॉइंट इन द न्यूट्रल वे, व्हाट आर द थिंग्स, एंड देन यू मेक इवैल्यूएशन एंड जजमेंट. आप लोगों ने क्या किया, शुरुआत में ही जजमेंट दे दिया और फिर आप पॉइंट लिखे जा रहे हैं. तो मैं ये थोड़ा आपको करेक्ट करना चाहता हूँ. तो करना क्या चाहिए था कि सेक्स डिफरेंस होते हैं, नो डाउट दैट इन मेनी वेज men and women differ. बहुत सारे अंतर होते हैं. एंड फॉर एग्जाम्पल फिजिकल स्ट्रेंथ में साफ सुथरा होता है. एवरेज फिजिकल स्ट्रेंथ ऑफ मेन इज हायर देन women. दिस इज फैक्ट. In every culture you will find this thing. So this is the thing. Likewise, if you are comparing many of the characteristics of men, then their minds are not alike. The way on nurture and dimensions, if you take a personality of the individual, on nurture and dimensions women score more, whereas when you take that assertiveness and planning, goal orientation, then men is more. So this is there is difference. Nobody can deny this thing. Then what is the point in discussing this thing? In the next paragraph you can say, then when we move from sex differences to gender differences, when we move from so gender difference, that is the topic that is given, is more about cultural conceptualizations rather than फिजिकल थिंग्स, नेचुरल थिंग्स. मेन एंड वीमेन में अंतर तो होता ही है नेचुरली, कौन डिनाई करेगा. मेडिकल साइंस देख लो, हार्मोन्स का लेवल देख लो, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ. लेकिन जेंडर का कल्चरल कंसेप्चुलाइजेशंस अलग है. फॉर एग्जांपल इफ यू गो इन इंडियन सोसाइटी, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में देखें तो वी लिव इन अ culture where there are differences, in men and women. तो ये जो आप देख रहे थे यहाँ पे जो हॉरिजेंटल डिफरेंसेस है मेन एंड वीमेन के बीच में, you will find that culture specific culture. When I talk about culture, I hope you are aware that culture means values, norms, man-made part of the environment is called culture. हरकोविट्ज़ नाम का एक फेमस एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, उसने कहा मैन मेड इन्वायरमेंट जितनी भी चीज़ें वो कल्चरल है.
तो कल्चर में दो एस्पेक्ट होते हैं, एक फिजिकल एस्पेक्ट, जैसे आपने बिल्डिंगें बनाई, ट्रक बनाए, कार, इंस्ट्रूमेंट बनाए, मोबाइल बनाए, ये सब भी कल्चर का ही पार्ट है, बट फिजिकल एस्पेक्ट. अनदर इज व्हाट नॉन फिजिकल, वैल्यूज, नॉर्म्स, बिलीव्स. Okay, so these are non-physical part. So when you say that, when you say culture, when I talk about non-physical part, the values, norms, beliefs, and your own fear also, prejudices, stereotypes, everything. That is all gender stereotype. So it is say that if you look at Indian culture, this culture in Indian subcontinent, it is largely patriarchal, means that male superiority is there, hegemony is there. The main decision making is by male, authorities of male. If you look at the genetic line is, पहले वाले को कहते हैं सत्ता किसकी चलती है, यानी तो आपने कहा पैट्रियार्कल मतलब पितृ सत्तात्मक, मतलब मेल का सत्ता है. एंड द सेकेंड वन, किससे जेनेटिक आइडेंटिटी किसकी है, किसके आधार पर वंश की पहचान होती है, देन इट इज लार्जली पैट्रिलिनियल. पैट्रिलिनियल का मतलब जैसे पिता से जो चल रहा है ना, तो मेल की आइडेंटिटी ही डोमिनेट करती है. तो देखो, ऑथोरिटी ऑफ मेल, आइडेंटिटी ऑफ मेल, तीन दो चीज़ें ध्यान रखें, ऑथोरिटी एंड आइडेंटिटी. From where it has come? Through cultural evolutions. We live in a Triandis is a cultural anthropologist. Hofstede is a cultural anthropologist. Likewise, you will go through Indian anthropologists. You will find that they are of the same opinion that this culture is largely what kind of culture? Collective. On the other hand, Europe and American culture is largely individualistic. So in this collective culture, we feel interdependent. But see this thing, within that interdependence, you can say male and female are independent, male and male independent, female and female interdependent. But the mindset is that interdependence is there, but you are subordinate to me. Mindset. So what kind of, I'm telling you the patriarchal structure, patrilineal identity means from male, and parochial attitude. Parochial means narrow attitude towards particular gender. So if you look at these three parameters, patriarchal structure, patrilineal, parochial attitude, these are things are interconnected, and you can say that these are culturally constituted things. Means हमारे कल्चर के कारण है ये. अगर ये यूनिवर्सल होता तो सभी में एक जैसा होता. गो इन नायर in Kerala or in Goro Jaintia, Khasi tribes over there in Arunachal and all. Then northeast region में जो spread है उनका. Then in some places you will find matrilineal societies also there. Likewise, go in other part of the world. Their system is different. So who will dominate? Who will be participating in decision making? इसको जब जानना है तो आपको कल्चर का एनालिसिस करना ही होता है. यू आर गेटिंग, एंड देन यू कम टू नो दैट, एंड रिसर्चर हैव आल्सो कंफर्म दिस थिंग दैट जेंडर इज लार्जली कल्चरली कॉन्स्टिट्यूटेड. सेक्स इज अ नेचुरल कॉन्सेप्ट, बट जेंडर is a culturally constituted concept, because this gender is not emotional things, this gender have many things, values. आप कहते हैं एक लड़की हुई है, देखो बहुत सारे ट्रिगर्स आ जाएंगे. बस अभी रिसेंटली मेरे एक रिलेटिव ने हमें फ़ोन किया,
एंड बहुत ही खुशी से बोला कि सिजरियन से मेरे यहाँ बेटा हुआ है. सी दिस थिंग, द वैल्यू, बिकॉज दैट इज़ द सिम्बॉलिक थिंग. बेटा होगा और उसका क्या कल्याण करे वो बाद में देखेंगे, लेकिन आप समझ सकते हो जो खुशी है, उसकी इमोशनल कनेक्ट है उस कौन जेंडर से, वो दिख रहा है वहाँ पे. लोग सेलिब्रेट करते हैं, लोग की एक फीलिंग होती है. और जिनके बेटे नहीं होते, मेल नहीं होता, आइडेंटिटी कारण देख रहे हो, तो उनका देखो कि एक फील होता है कि मेरी जेनेटिक लाइनेस क्या होगा, मेरी पहचान क्या होगी. सो सी, दिस इज अ डीप रूटेड थिंग्स बट कल्चरली कॉन्स्टिट्यूटेड. मतलब हम इसको बायोलॉजिकली लेकर नहीं आए हैं, हम उसका कल्चरल इंटरप्रिटेशन करते हैं. और हमारे कल्चर में मेल को सुपीरियर माना गया है, फीमेल को इन्फीरियर माना गया. ऐसा नहीं है कि हमारे कल्चर में ही. आप यूरोप में चले जाते 19 से 18 सेंचुरी में, 17 सेंचुरी में, तो बहुत सारे लोगों ने लिखा है और उनके आर्टिकल को अगर आप देखें तो उसमें साफ दिखता है, उस नोवेल में, आर्टिकल में, कि विमेन का स्टैंडर्ड तो सबऑर्डिनेट ही था, नीचे ही था. नहीं होता तो यूएस जैसे कंट्री में पॉलिटिकल राइट विमेन को उनका फ्रीडम के साथ ही क्यों नहीं मिला. शुरुआत में मेल को ही पॉलिटिकल राइट था. तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि केवल इंडियन सब कॉन्टिनेंट में ऐसा, सभी कल्चर में ऐसा मिल सकता है कमोबेश, लेकिन सभी में एक जैसा नहीं है. तो इट मीन्स सम रोल कल्चर प्ले. तो कल्चर के कारण हम बार बार कहे जा रहे हैं कि ये ऐसा डेवलपमेंट होता है, यू नो. तो अब हमें क्या दिखाना है कि अब हमको ये देखना है कि क्या है कल्चर. डिफरेंस तो होंगे, देयर इज़ डिफरेंसेस, बट ये डिफरेंस जो है वो कल्चर का बनाया हुआ है, हमारा बनाया हुआ है, हमारे सिस्टम का बनाया हुआ है. और विमेन ऐसा नहीं कि लड़ती रहती है उससे, वो भी मानती है हाँ ठीक ही तो है. The way genders are socialized, they come to accept that role, accept that identity, accept that status. वो लड़ते नहीं रहते. एक विमेन मानती है हाँ मेरे साथ क्या इंजस्टिस, में तो ऐसे ही होता है सोसाइटी. सो उन ये जो बैलेंस है कल्चरली क्रिएटेड, उसको स्टेबल रखने में बिलीव्स का भी बहुत बड़ा रोल है. एक फिनोमेना होता है जिसको कहते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी. सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी मतलब होता है कि द बिलीव्स बिकम रियलिटी. जैसे आप मुझे कह दो कि आप बड़े इंटेलिजेंट हो और मैं पढ़ना शुरू करता हूँ ज़्यादा और एफर्ट्स लगाता हूँ और मेरे ग्रेड अच्छे होते हैं स्कूल में, तो कहते कि हाँ देखो मैंने, आपने माना कि बिलीव्स है. और वो उसी तरीके से आप विमेन को कहो कि ये रिस्पेक्ट के लायक है, इनको केयर करना चाहिए, प्रोटेक्शन देनी चाहिए. मेट्रो में जाएँ देखते हैं कि शुड गिव बर्थ टू विमेन, महिलाओं के लिए जो सीट छोड़िए, कमज़ोर लोगों के लिए सीट छोड़िए. तो आप कह रहे हो कि कमज़ोर जैसे ही आप हैं इसलिए आपके लिए सीट छोड़ रहे. सो व्हेन यू गिव दिस काइंड ऑफ ट्रीटमेंट, प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट, देयर कम समथिंग इन माइंड दैट व्हाई आई एम बीइंग गिवन दिस काइंड ऑफ थिंग, एंड दे कम टू बिलीव आल्सो दैट यस इट कुड बी. तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी जो है वो एक्सप्लेन करता है कि दैट जैसा आप विश्वास करते हैं वैसा होते चले जाते. तो इफ़ दिस कल्चरल बिलीफ इज इंटरनलाइज्ड बाय विमेन और मेल जैसे मानते हैं कि हमें तो ऐसा करना ही है, then they behave with that. Many sociologists also believe that this beliefs also makes a difference. तो लड़ते नहीं रहते वो, दे की एडजस्ट विद दिस सिस्टम. गेटिंग. तो हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंसेस तो होते हैं, लेकिन वो डिफरेंसेस जेंडर का बनाया हुआ है. और जेंडर डिफरेंसेस जो है, सेक्स डिफरेंस अलग है, ये कल्चरली कॉन्स्टिट्यूटेड है एंड इट इज़ मैन मेड, ह्यूमन मेड कह सकते. आपने नाम सुना जेंडर स्कीमा थ्योरी? ऐसे सुना होगा आपने, नहीं सुना है तो सुन लो. स्कीमा थ्योरी, जेंडर स्कीमा थ्योरी कहते हैं मोमेंट. स्कीमा मीन्स व्हेन यू से समथिंग दैट इज कॉन्सेप्ट, व्हेन नंबर ऑफ थिंग्स आर देयर दैट इज स्कीमा, नॉलेज फ्रेमवर्क. जैसे आप डॉक्टर कहते हैं, डॉक्टर एक वो समझ हॉस्पिटल है तो उसमें एक स्कीमा है ना हॉस्पिटल का, कि हॉस्पिटल में बिल्डिंग होते हैं, डॉक्टर्स होते हैं, नर्सेज होते हैं, पेशेंट, सो मेनी कॉन्सेप्ट्स आर देयर दैट गो टुगेदर. So when I talk about gender, male, it is not a single concept. It is a schema. Whole schema get triggered, and all the values, preferences, beliefs, attitude that you have about that thing get triggered.
तो जेंडर स्कीमा थ्योरी की एक पूरा फ्रेमवर्क बनता है उसका, जेंडर का एक सिंगुलर चीज़ नहीं है, न्यूट्रल नहीं है ये। तो जेंडर इज़ नॉट पॉलिटिकली न्यूट्रल, इमोशनली न्यूट्रल, जेंडर इज़ नॉट अ न्यूट्रल कॉन्सेप्ट, रिमेंबर। अब सवाल होता है बैलेंस किधर की तरफ है। हमने बनाया है कि दैट दिस इज डिफिशियंसी, है ना। कई ऐसे सोसाइटी है, जैसे आप एंथ्रोपोलॉजी का स्टडी लें, जो कल्चर की स्टडी करने वाला, क्रॉस कल्चरल स्टडीज़ बेसिकली एंथ्रोपोलॉजिस्ट है, कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट। सो मार्गरेट मीड, she is a cultural anthropologist, and she has conducted research in New Guinea area on 3 tribes: Mundugmor, Arapes, Chambuli. And what she found, that in Chambuli tribes, perhaps one tribe, there is a gender role reversal. Means uh, female is more dominant, female is more assertive. All the outdoor work are being performed by female, and male are all indulged in what? Household works. So on the basis of this finding, see, make a point that this say gender role so called आप कहते हैं घरों में खाना बनाना, बच्चे का देखभाल करना, ये भी कल्चरली कॉन्स्टिट्यूटेड। सो सी मेड ए पॉइंट। बट आप इन सारे पॉइंट्स ये नहीं समझने लगे कि डिफरेंस नहीं होता। विमेन वीक होती हैं फिजिकली, इसमें कोई शक नहीं है। पॉइंट इज मेल भी कई चीज़ों में वीक होते हैं। जैसे आप वर्बल, आप इंटेलिजेंस देखें ऑन एन एवरेज तो फीमेल का ज़्यादा निकल गया है मेंटली। तो कोई वीक इसमें है, कोई इसमें है। वाई दिस शुड बी जज्ड ऑन द बेसिस ऑफ वीकनेस? क्वेश्चन इज दिस। वो जिस एस्पेक्ट में कमजोर है, दैट इज अ क्वालिटेटिव डिफरेंस। देयर आर मेनी एरिया इन विच दे आर सुपीरियर। मेल भी तो कई एरिया में कमजोर है ना। ट्राई टू अंडरस्टैंड। So why this should be judged on the basis of this weakness and said that gender difference is gender deficiency? Weaknesses होंगे, this point is important, you know. वो weakness हमने इंटरप्रेट किया है, डिफरेंस तो है ही है और वीकनेस भी है, चलो मानते हैं। बट why this should be judged on that weakness? Question is this one. Suppose I do not have that much verbal intelligence. Why I should be judged on the basis of this verbal intelligence? Likewise, when women are physically on an average weak, so why this should be judged on the basis of that physical weakness? Question is this thing. Very famous quotation is there. A fish should not be judged if she can climb a tree or not. Understood? तो ये जेंडर डिफरेंस जो है वो एक नेचुरल डिफरेंस से भी पैदा हुआ है और हमने भी बनाया है। सेक्स डिफरेंस के कारण जितना ओवरलैप है जेंडर में वो है, लेकिन जो हीनता ग्रंथि है, जो इन्फीरियरिटी है, सुपीरियरिटी का कॉन्सेप्ट है, हेजीमोनी का कॉन्सेप्ट है, हमारा भाव कि दैट वी आर, आई एम मेल मीन्स ग्रेट, दीज आर learned and idealized. ये हमारे सोशियो कल्चरल लर्निंग में रूट। तो ये ऐसे का एक पूरा फ्रेमवर्क है ना। क्या समझा आपने? देखा होगा कि मैंने डिफरेंस दिखाया है, डिफरेंस होते हैं और कई चीज़ों में डिफिशियंसी भी होती है और वीकनेसेस भी होते हैं। ये सब के बावजूद, डिस्पाइट ऑल दीज थिंग्स, दिस शुड नॉट बी जज्ड ऑन दिस थिंग। हमने बोला जेंडर डिफरेंस, हमने विमेन का नहीं लिखा है। उस टॉपिक में ये नहीं कहा विमेन को केवल जज करिए, तो दोनों को आप देखिए कि अगर आपने देखा ऑन एन एवरेज मेल जो है नर्चरेंस डायमेंशन पे विमेन से कमजोर, तो वाई दिस शुड बी जज्ड ऑन दिस बेसिस ऑफ दिस थिंग कि आप इसमें कमजोर हो, इसमें कमजोर हो। तो पॉइंट इज नॉट मेकिंग यू नो कि डिफेंसिव होने में कोई पॉइंट नहीं है यहाँ पे। पॉइंट है कि देयर आर क्वालिटेटिव डिफरेंसेस, है ना।
एंड क्वालिटेटिव डिफरेंसेस शुड नॉट बी कन्फ्यूज विथ क्वांटिटेटिव डिफरेंसेस। लेकिन अगर फिजिकल स्ट्रेंथ में कहेंगे तो हाँ होता है, डेफिनेटली होता है। एग्रेशन के डायमेंशन पे डेफिनेटली मेल में ज़्यादा एग्रेशन होता है, प्रूवन है। लेकिन उस आधार पर जो आपको जज नहीं करना चाहिए, यही है इस पूरे एसे का डिस्कशन का आधार। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस थिंग। देखिए हमने आपको एक बेसिक फ्रेमवर्क बताया है। आई होप डिपेंडिंग अपॉन योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, जैसे आप ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, जो कहीं से भी हो, आप अपने अपने तरीके एग्जाम्पल यूज़ करेंगे, लेकिन एक कहने का पॉइंट रखने का तो यही एक बेसिस होगा ना, यही एक फ्रेमवर्क होगा, आप इस पर रख के आप कर सकते। सो आई होप आई मेड दिस पॉइंट क्लियर। अगर आपको कुछ और इसमें डाउट्स हो तो हमसे पूछ सकते हैं। अगर आप ब्यूटीफुल माइंड IAS के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अभी आजकल हम लोग अपने ऐसे के डिस्कशन को ओपन रख रहे हैं, तो आई होप इट बी बेनिफिशियल फॉर यू। और अगर आप चाहते हैं कि हम भी अपने ऐसे को इवैल्यूएट करें तो आप हमारे कोर्सेज़ को ज्वाइन करें, बहुत ही डिस्काउंटेड रेट पे आजकल हम लोग ऑफ़र कर रहे हैं। तो जस्ट टू प्रमोट द हैबिट दैट ऐसे कैसा है, ऐसे सभी लोग लिख सकते हैं अच्छा, अगर वो प्रैक्टिस करें और वो गाइडेड प्रैक्टिस। लिखने से केवल नहीं अच्छा होगा, उसको इवैल्यूएट करें और उस फीडबैक पे वर्क करने पे होगा। तो केवल हाँ प्रैक्टिस तो कई लोग लिखते ही नहीं हैं, तो वो तो किसी भी एरिया में एप्लीकेबल है कि आपका मॉडल आंसर ही लिखने का प्रैक्टिस नहीं तो आप लिख नहीं पाओगे। लेकिन ऐसे एक मल्टी डायमेंशनल चीज़ें होती है, जैसे आपने देखा कई एंगल से दिखते हैं, तो इसको करने से ही होता है। तो आपको एडवाइस करूँगा कि आप वीक में एक ऐसे तो लिख लो एंड गेट इट इवैल्यूएटेड। अगर आपके आसपास कोई इवैल्यूएट करने वाला हो तो उससे कराइए। अगर आप हमें चाहते हैं तो हमसे कराइए। डिटेल जानना चाहते हैं हमारे वेबसाइट पर जाइए। थैंक यू वेरी मच।